محکمہ خوراک کی جانب سے مفت آٹے کی سپلائی میں تاخیر، کمشنر سلوت سعید کی جانب سے ہنگامی اجلاس کا انعقاد، مفت آٹے کی تقسیم میں تاخیر پر بریفنگ لی، ڈپٹی ڈائریکٹر فوڈ کا کہنا تھا اتوار کے روز سے مفت آٹے کی سپلائی ممکن بنائی جائے گی۔ اجلاس میں ڈپٹی کمشنر علی عنان قمر، ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر جنرل احمد سعید منش، ڈپٹی ڈائریکٹر فوڈ وقار یوسف بھی شریک ہوئے۔ اس موقع پر ڈپٹی ڈائریکٹر فوڈ کا کہنا تھا کہ مفت آٹے کی سپلائی پنجاب بھر میں محکمہ خوراک کی جانب سے نہیں پہنچ سکی، اتوار کے روز سے مفت آٹے کی سپلائی ممکن بنائی جائے گی۔ کمشنر سلوت سعید نے ڈپٹی کمشنرز کو آٹے کی مفت فراہمی کو ہر صورت یقینی بنانے کی ہدایات جاری کرتی ہیں۔ مزید بتا آپ کو جھنگ سمیت پنجاب بھر میں مفت آٹے کی فراہمی کے حوالے سے فلور ملز کو گندم کی فراہمی بارے پالیسی تیار، فلور ملز کی جانب سے 25 روپے فی 10 کلو تھیلا ریٹیلرز کو منافع اور ٹرانسپورٹ کے اخراجات کے طور پر ادا کیے جائیں گے۔ فلور ملز تمام اخراجات فوڈ اکاؤنٹ 2 میں پیشی جمع کرائیں گے، ٹرکنگ پوائنٹس پر فلور ملز اپنا عملہ بھی فراہم کریں گے۔ فلور ملز کی جانب سے فراہم کردہ عملے کو پی آئی ٹی بی کی سائٹ پر واضح کیا جائے گا۔ فلور ملز کو گندم 3900 روپے فی من کے حساب سے فراہم کی جائے گی۔ جنگ میں ضلع بھر کے 4,90,000 مستحق افراد کو مفت آٹا ملے گا، 131 آٹا مراکز قائم کر دیے گئے، ڈی سی کی عوام کو آٹے کی مفت ترسیل میں اپنا کردار ادا کرنے کی ہدایت کر دی۔ نگران حکومت نے مستحق شہریوں کے لیے بڑے ریلیف پیکج کے تحت مفت آٹا دینے کا فیصلہ کر لیا ہے۔ جھنگ کے 63 یوٹیلیٹی سٹورز پر آٹا ملے گا، 68 ٹرکنگ پوائنٹس بھی شامل ہیں۔ روزانہ 49,000 سے زائد آٹے کے تھیلے مستحق افراد میں تقسیم کیے جائیں گے۔ آٹے کے حصول کے لیے آنے والے شہری اپنا اصل شناختی کارڈ ضرور ہمراہ لائیں۔ ڈپٹی کمشنر عبداللہ خرم نیازی نے کہا ہے کہ آٹے کی فراہمی کا کام آئندہ روز سے شروع کر دیا جائے گا۔ احمد پور سیال میں بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کی 21 مارچ سے شروع ہونے والی متوقع سماحی قسط کے سلسلے میں ڈپٹی ڈائریکٹر بی آئی ایس پی احسان اللہ کمبو اور اسسٹنٹ ڈائریکٹر محمد شعیب بخاری کی احمد پور سیال آمد، بی آئی ایس پی تحصیل احمد پور سیال کے ریٹیلر سے میٹنگ کا انعقاد کیا گیا۔ آپ کو بتا رہے ہیں اس موقع پر ڈپٹی ڈائریکٹر بی آئی ایس پی احسان اللہ کمبوا کا کہنا تھا کہ متوقع قسط 7,000 سے بڑھا کر 8,500 روپے کر دی گئی ہے۔ سماحی قسط کے ساتھ ہی بچوں کا تعلیمی وظیفہ بھی شامل ہوگا۔ فیصل آباد سے پیر محل شورکوٹ قلعہ شیخ پورہ سیکشن کی لیول کراسنگ کی اپ گریڈیشن سکیم، محکمہ ہائی وے محکمہ ریلوے کے آپریشنل چارجز ادا نہ کر سکا، محکمہ ریلوے نے محکمہ ہائی وے سے 14,91,000 کے فنڈز مانگ لیے۔ محکمہ ریلوے نے محکمہ ہائی وے کو فنڈز کے حوالے سے مراسلہ جاری کر دیا ہے، جس میں کہا گیا ہے کہ ریلوے لیول کراسنگ کے چارجز 2 سال گزرنے کے باوجود ادا نہ کیے جا سکے۔ محکمہ ریلوے نے 23 مارچ سے قبل 14,91,000 کے فنڈز ریلوے کو ٹرانسفر کرنے کی استطاعت کی ہے۔ بتا آپ کو پنجاب میڈیکل کالج فیصل آباد کے طلباء و طالبات کا یونیورسٹی انتظامیہ پر سلیبس سے ہٹ کر پیپر دینے کا الزام ہے۔ میڈیکل طلباء کا کلاسوں کا بائیکاٹ، تعلیمی سرگرمیوں کا سلسلہ رک گیا۔ پنجاب میڈیکل کالج کے طلباء و طالبات نے کلاسوں کا بائیکاٹ کر دیا، جس کے باعث تعلیمی سرگرمیوں کا سلسلہ رک گیا۔ طلباء نے میڈیکل یونیورسٹی انتظامیہ پر سلیبس سے ہٹ کر پیپرز دینے کا الزام عائد کیا۔ میڈیکل یونیورسٹی انتظامیہ نے گزشتہ دنوں 3rd پروفیشنل MBBS کے سالانہ امتحان کے نتائج کا اعلان کیا تھا۔ رزلٹ کے مطابق 71% طلباء و طالبات فیل قرار دیے گئے۔ پرنسپل پنجاب میڈیکل کالج فیصل بلال لودھی کا کہنا تھا کہ میڈیکل کے طلباء و طالبات نے کلاسوں کا بائیکاٹ کیا ہے۔ میڈیکل طلباء کا امتحان میڈیکل یونیورسٹی انتظامیہ نے لیا ہے۔ تمام شعبوں کے انچارج یونیورسٹی انتظامیہ سے اس مسئلے پر بات کریں گے، سوموار تک مسئلہ حل ہو جائے گا۔ وائس چانسلر میڈیکل یونیورسٹی پروفیسر ظفر علی چودھری کا کہنا تھا کہ فیل ہونے والے طلباء و طالبات پہلے 2 امتحان میں پاس تھے، تیسرے میں فیل ہوئے تو احتجاج کر رہے ہیں، حالانکہ انہیں رعایتی نمبر دے کر پاس کیا گیا ہے۔ میڈیکل یونیورسٹی خود مختار ادارہ ہے، اگر کسی طرح انہیں رعایتی نمبر دے کر پاس کیا گیا تو یہ انسانی زندگیوں کے ساتھ ناانصافی ہوگی۔ کیمرامین قمر بھٹا کے ساتھ عزادار حسین، سٹی 41 فیصل آباد۔ جنگ میں اسکولوں سے باہر موجود بچوں کو تعلیمی عمل میں لانے کا فیصلہ، محکمہ اسکول ایجوکیشن نے انرولمنٹ کیمپین شروع کرنے کا فیصلہ کر لیا۔
टारगेट्स भी फराहम कर दिए गए। महकमा स्कूल एजुकेशन की जानिब से पंजाब भर में 5,35,452 बच्चों को स्कूलों में दाखिल करने का टारगेट दिया गया है। जंग को 13,021 बच्चों को दाखिल करने का टारगेट दिया गया है। तमाम अजला में मुख्तलिफ दिनों में इवेंट्स भी मुनक्किद किए जाएंगे। फैसलाबाद में रवा माली साल की तीसरी छमाही के दौरान हकाइक के मुनाफी टैक्सेस लगाने पर एफबीआर को 60 करोड़ रुपए की टैक्स वसूली से रोक दिया गया है। एपलेट ट्रिब्यूनल और मुख्तलिफ अदालती फॉर्म्स ने 52 केसेस में हुक्म इब्तनाई जारी कर दिए। फैसलाबाद में रवामारी साल की तीसरी छमाही के दौरान हकाइक के मुनाफी टैक्सेस लगाने पर एफबीआर को 60 करोड़ रुपए के टैक्स वसूली से रोक दिया गया। एपलेट ट्रिब्यूनल और मुख्तलिफ अदालती फॉर्म्स ने 52 केसेस में हुक्म इम्तनाई जारी कर दिए। रवामाली साल की तीसरी माही के दौरान 52 टैक्स गुजार कंपनियों ने मुख्तलिफ अदालती फॉर्म से रुजू किया और एफबीआर के फैसलों को खिलाफ कानून करार दिया। हाई कोर्ट और एपलेट ट्रिब्यूनल ने टैक्स दहिंदगान को रिलीफ फराहम करने के लिए इन केसेस में स्टे ऑर्डर्स जारी किए और एफबीआर को रिकवरी से रोक दिया गया। टैक्स गुजार कंपनियों ने एफबीआर के फैसलों से इख्तलाफ करते हुए अदालती फॉर्म से रिलीफ हासिल किया। टैक्स गुजारों के मुताबिक एफबीआर ने हकाइक के मुनाफी टैक्सेस लगाए थे। उधर फैसलाबाद डिवीजन में महकमा एक्साइज एंड टैक्सेशन ऑडिट केसेस के तहत 800 जायदाद मालिकान से प्रॉपर्टी टैक्स वसूल में नाकाम। ऑडिट केसेस से वसूली का हद 9 करोड़ रुपए लगाया गया था। रिकवरी सिर्फ 2 करोड़ 5 लाख रुपए हो सकी। सूबाई हेडक्वार्टर के अहकामात के बावजूद मकामी एक्साइज हुकाम ऑडिट केसेस में बनने वाले टैक्सेस की रिकवरी न कर सके। ऑडिट रिपोर्ट के मुताबिक टैक्स अदायगियां न करके कौमी खजाने को 9 करोड़ रुपए का नुकसान पहुंचाया गया। एक्साइज हुकाम ताहाल 7 करोड़ रुपए जायदाद मालिकान से वसूल ना कर सके। एक्साइज हुकाम के मुताबिक ऑडिट केसेस की रिकवरी यकीनी बनाने के लिए इकदाम किए जा रहे हैं। वेलकम स्कूल मिलत टाउन कैंपस फैसलाबाद की सालाना तकरीब तकसीम इनामात। मज़ीद जानिए इस रिपोर्ट में। दार-ए-अरकम स्कूल मिल्लत टाउन कैंपस फैसलाबाद की सालाना तकरीब तकसीम इनामात का इनेकाद किया गया। तलबा ने कुरान पाक, नमाज और रमजान के मौजू पर टैबलोज भी पेश की। तलबा ने कश्मीरियों पर भारतीय मजालम के खिलाफ यकजहती कश्मीर खाका भी पेश किया। डायरेक्टर दार-ए-अरकम स्कूल्स अब्दुल्ला मुदस्सिर और प्रिंसिपल कायनात बुखारी का कहना था कि बच्चों को तहजीब और रवायात और मुआशरती आदाब सिखाना बहुत जरूरी है। बच्चों की पूरा साल जो मेहनत की जाती है उसका उनको इनाम मिल सके, उस पर उनकी हौसला अफजाई की जा सके, ये उनकी मेहनत का एक फल होता है और बल्कि पूरे साल की मेहनत का एक आकाश भी होता है कि बच्चे ना सिर्फ मुसलमानों की शानदार तारीख से वाकिफ हों बल्कि उनको देखकर एक पोटेंशियल पैदा करें जिसकी वजह से वो ऐसे हीरोज बनने की कोशिश करें और हमारे आइंदा दौर में भी ये सब लोग सामने आए। साबिक रजिस्ट्रार जीसी यूनिवर्सिटी शेख अयूब लतीफ, रीजनल डायरेक्टर दार-ए-अरकम स्कूल्स डॉक्टर इम्तियाज अहमद शेख, कैंपस डायरेक्टर एहसान यूसुफ, मोहम्मद यूसुफ, सफीउर रहमान, उस्मान वली, डॉक्टर सैयद अफराज गिलानी, नसीर बेग व दीगर ने तकरीब में शिरकत की और पोजीशन होल्डर्स में इनामात तकसीम किए। कैमरामैन मोहम्मद वक्कास के साथ जहांगीर अशरफ, फैसलाबाद। जंग में इकबाल घी एंड कुकिंग ऑयल की सालाना तकरीब। इवेंट में डिस्ट्रीब्यूटर्स में इनामात तकसीम किए गए। मैनेजिंग डायरेक्टर शेख फवाद अकरम ने खसूसी शिरकत की। डिस्ट्रीब्यूटर्स को उम्रे के टिकट्स, मोटरसाइकिल, LCDs, गोल्ड रिंग्स और दीगर कीमती अशिया से नवाजा गया। इकबाल घी एंड कुकिंग ऑयल की जानिब से सालाना तकरीब तकसीम इनामात का इनाकाद मकामी मार्की में किया गया। तकरीब में इकबाल घी एंड कुकिंग ऑयल के डिस्ट्रीब्यूटर्स की कारकर्दगी को सराहा गया, जिस पर डिस्ट्रीब्यूटर्स ने खुशी का इजहार किया। अल्लाह ताला उनको जिदाए खैर दे, अल्लाह ताला दीन करे और कारोबार में इससे ज़्यादा तरक्की दे, इकबाल घी के ज़्यादा से ज़्यादा खुशियाँ नसीब करे, अल्लाह ताला उनके लिए करा दे पूरे करा। इंशाल्लाह आने वाले दिनों में भी इकबाल बनास्पति एंड कुकिंग ऑयल ये है इकबाल का देश और ये देश इंशाल्लाह बढ़ेगा और इसमें कंज्यूमर्स बढ़ेंगे, डिस्ट्रीब्यूटर्स बढ़ेंगे, ये चेन बढ़ेगी, ये फैमिली बढ़ेगी इंशाल्लाह। कुरानदाजी के जरिए उम्रे के 3 टिकट्स, मोटरसाइकिलें, LCDs दी गईं, गोल्ड रिंग्स, रेफ्रिजरेटर्स, डिनर सेट, गीजर्स, वॉशिंग मशीन भी इनामात में निकली। डिस्ट्रीब्यूटर्स ने इकबाल घी इंतजामिया का शुक्रिया अदा किया। ये बहुत अच्छा इनिशिएटिव है कि हर साल एक गेट टुगेदर भी हो जाती है। इसमें जो हमारे जो कारोबारी आइडियाज़ हैं वो भी शेयर हो जाते हैं। इसके अलावा जहाँ तक इकबाल घी की क्वालिटी का तल्लक है, नो डाउट कि इसका फ्यूचर बहुत अच्छा है। इकबाल घी क्वालिटी इस वक्त पाकिस्तान में जो बेहतरीन घी हैं उनमें से एक इकबाल घी है और इस हवाले से ये है कि जो ये सेमिनार हैं जो हैं डिस्ट्रीब्यूटर को भी मुतहरिक करते हैं, साथ में कस्टमर को भी मुतहरिक करते हैं। डिस्ट्रीब्यूटर्स के एजाज में खाने का भी एहतमाम किया गया। कैमरामैन अरबाब अहमद के साथ मोहम्मद रमजान मिर्जा, सिटी 41 जंग। आपको बताएं फैसलाबाद में बर्ग कॉस्मेटिक्स मसनूआत की गोल्डन जुबली बर्ग आमला की तकरीब में केक काटा गया। तमाम मार्केटिंग ओहदेदार, डीलर्स और डिस्ट्रीब्यूटर्स शरीक।
बेहतर कारकर्दगी दिखाने वाले डीलर्स और वर्कर्स में इनामात तकसीम किए गए। पूरे पाकिस्तान की तकरीब होती हैं लाहौर में, तो ये पहली दफ़ा बरग आमला ने अपनी प्रोडक्ट को यहाँ पे लॉन्च करके अपने इनामात बांटे हैं, जिसमें हमारा पहला इनाम जो है ना 2 लाख रुपये है। और ये जो आज का इवेंट है ये अल्हम्दुलिल्लाह हमारी 50 साल की काविश का नतीजा है कि हमारे कंपनी को 50 साल मुकम्मल हो गए हैं। सालाना तकरीब में डीलर और डिस्ट्रीब्यूटर में बजरिया कुरानंदाजी इनामात, गिफ्ट हैम्पर्स और एजाजी सर्टिफिकेट तकसीम किए गए। इनामात मोटर बाइक, वॉशिंग मशीन और 2 लाख का बम्पर प्राइस दिया गया। इस मौके पर नेशनल सेल्स मैनेजर काशिफ रिजवान अंसारी का कहना था कि कंपनी ने बहुत अच्छा इकदाम उठाया है। सालाना तकरीब से डिस्ट्रीब्यूटर और मुलाजमीन में अहमियत का एक रिश्ता पैदा होता है। मेरे तमाम डिस्ट्रीब्यूटर हजरात जो इस फैसलाबाद जोन से तशरीफ़ लाए हैं, मैं उनका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ कि इस महफिल को उन्होंने रौनक बख्शी और हमारे इसमें काविशों में साथ है हमारे वक्त। तकरीब के इख्तिताम पर बर्ग आमला कॉस्मेटिक्स की जानिब से कामयाबी के 50 साल मुकम्मल होने पर गोल्डन जुबली केक भी काटा गया। कैमरामैन वहीद महमूद के साथ फसीह नकवी, सिटी 41 फैसलाबाद। कचनार मौसम बहार की जायकादार, फायदों से भरपूर सब्जी, आजकल कचनार की कलियों का सीजन। फैसलाबाद में कचनार आई और जाने वाली भी हो गई। कचनार खाने में इंतहाई लजीज और खुश जायका होती है। उसमें बहार का सब्जियों में बेहतरीन तोहफा कचनार 1 महीने से भी कम रहने वाली सब्जी है। फैसलाबाद में कचनार आई और जाने वाली भी हो गई। कचनार की सादा भुजिया भी बनाई जाती है, लेकिन ये सबसे ज्यादा लजीज कीमे या गोश्त के साथ बनती है। शहरियों का कहना था कि कचनार खाने का मजा ही अलग है। ये मौसम बहार का एक तोहफा है। पहले तो बहुत महंगी थी, अब मतलब इसका मुनासिब रेट है और ये एक माह के लिए सिर्फ आती है। और इसमें कीमा गोश्त वगैरह तो बहुत प्यारी खूबसूरत हांडी तैयार होती है और हर पाकिस्तानी को खानी चाहिए। 1 महीने के दौरान कचनार की कीमत में वाजिया कमी हुई है। 900 रुपए फी किलो में मिलने वाली कचनार 300 रुपए में फरोख्त होने लगी। शहरियों का कहना था कि कचनार काफी महंगी थी, खरीद नहीं पाए, अब सस्ती हो गई है तो बनाएंगे। कचनार काफी महंगी थी, ये हम तो लास्ट पे खाएंगे जी। जो जितनी महंगी थी 800-900 रुपए किलो थी, तो अब ये 250-300 रुपए किलो है जी। अल्हम्दुलिल्लाह अब हम लेने आए हैं जी घर से, तो इंशाल्लाह आप खाएंगे, गोश्त वगैरह में डालेंगे। कोई गोश्त भी काफी महंगे हुए हैं आजकल। ये सब्जी थोड़े वक्त के लिए ही मार्केट में आती है। चंद हफ्ते रहने वाली कचनार खाने को खूब चार चांद लगाती है। कैमरामैन शाहजेब अली के साथ मोहम्मद अली नारू, सिटी 41 फैसलाबाद। स्ट्रॉबेरी खूबसूरत, मुफीद और लजीज फल है। विटामिन सी से भरपूर, इसीलिए स्ट्रॉबेरी शहरियों की पसंद। शेक बनाई है आइसक्रीम हर हाल में मजेदार। शहरियों का कहना है रमजान उल मुबारक जूं जूं करीब आ रहा है, बाकी फलों के रेट्स तो बढ़ रहे हैं, लेकिन स्ट्रॉबेरी के रेट्स कम होते दिखाई दे रहे हैं। भरपूर सुर्ख स्ट्रॉबेरी ना सिर्फ दिखने में दिलकश नजर आ रही है, बल्कि खाने में भी बहुत लजीज नजर आ रही है। मैं इस वक्त खुद जो भी है स्ट्रॉबेरी जो है वो खरीद रही हूँ, खा रही हूँ, बहुत मजे की है। तो शहरियों की तरफ भी आए ले चलते हैं कि शहरी स्ट्रॉबेरी को किस तरह से पसंद करते हैं। फैसलाबाद में विटामिन से भरपूर, इसीलिए स्ट्रॉबेरी शहरियों की अवलीन पसंद बन गई। ये खुशनुमा सुर्ख रंग का फल देखने में जितना खूबसूरत है, इतना ही खाने में भी लजीज है। शेक बनाएं, आइसक्रीम या कुछ और, हर चीज में स्ट्रॉबेरी का जायका सबको पसंद आता है। शहरियों का कहना था कि रमजानुल मुबारक चूं चूं करीब आ रहा है, बाकी फलों के रेट्स बढ़ रहे हैं, लेकिन स्ट्रॉबेरी के रेट्स कम होते दिखाई दे रहे हैं। रमजान में इसका शेक बना लेते हैं, जूस बना लेते हैं, यही फल है। बाकी अपना फल जो बहुत हमारी पहुंच से दूर हो गया, स्ट्रॉबेरी ये अच्छी है, ये 120 से 130 से हम मिल जाती है हमें। दुकानदारों का कहना है 400-500 की स्ट्रॉबेरी 150-200 रुपए की बेच रहे हैं, ताकि आम इंसान बआसानी खरीद सके। 2-4 दिन हो गए है, हुण मंडी भी रहत हुई है, बाजार भी सेल कर रहे हैं। 150 रुपए किलो ਦੇ ਹੁਣ ਵੱਟੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਹਰ ਗਰੀਬ ਆਦਮੀ ਵੀ ਖਾ ਸਕਦਾ, ਮਾੜਾ ਬੰਦਾ ਵੀ ਖਾ ਸਕਦਾ, हर इंसान खा सकता है। स्ट्रॉबेरी वाला फल ऐसा है, जूस से भी लोग इस्तेमाल करते हैं, शेक से भी। विटामिन से भरपूर, इसीलिए स्ट्रॉबेरी ना सिर्फ शेक और जूस में इस्तेमाल होती है, बल्कि खाने में भी बहुत मजेदार है। कैमरामैन मोहम्मद शाहजेब के साथ सिलसिला जाकर, सिटी 41 फैसलाबाद। गर्मी का मौसम शुरू, मच्छरों की बहुतायत होने लगी, मच्छरदानियों के इस्तेमाल में इजाफा। मच्छरों से बचने के लिए सड़क किनारे लगे रंग बिरंगी मच्छरदानियों के स्टॉल लोगों की तवज्जो का मरकज बन गए। गर्मियां शुरू होते ही चिन्योट की सड़कों के किनारे रंग बिरंगी छोटी बड़ी मच्छरदानियां सज जाती हैं। गर्मियों में मच्छरों से बचने के लिए मच्छरदानी का इस्तेमाल सबसे सस्ता और देरपा तरीका है। एक बड़े साइज की फोल्डेबल मच्छरदानी 700 से 800 रुपए बआसानी दस्तयाब है। बस जो है ना, ये 2 किस्म पड़ा हुआ है, एक पैराशूट वाली है, एक जो ना टिश्यू वाला है। ये जो पैराशूट वाली है ना, ये जो है ना, ये 800 रुपए का फी दाना है और दूसरा जो ना 700 रुपए का फी दाना है। मच्छरदानी से ये जाली वाला जबरदस्त जाली लगा हुआ है।
शहर में मच्छरों की बहुतायत की वजह से मच्छरदानियों की तलब में इजाफा हो गया। शहरी मच्छरदानियां खरीदते भी नजर आते हैं, मगर उनका कहना है कि ये 800 रुपए में महंगी है। मच्छर नहीं सोने दे रहे, बहुत तंग कर रहे हैं, लाइट भी ऊपर से चली जाती है, तो मौसम भी ऐसा बन गया कि मच्छर ज्यादा आते हैं। प्राइस पूछी है, प्राइस बहुत हाई बता रहे हैं, तो माशाल्लाह महंगाई इतनी आ गई है कि मूड ही नहीं बना। दिल तो करता लेने का, लेकिन पैसे सुन के फिर बंदा वापस मुड़ जाता। मच्छरों से बचने और पुरसुकून नींद के लिए कोई ना कोई तरीका इस्तेमाल करके डेंगू और मलेरिया जैसी बीमारियों से बचना चाहिए। कैमरामैन औरंगजेब के साथ वकार गुमन, सिटी 41 चिन्योट। नौजवान अहलकारों का रस्साकशी का मुकाबला न सिर्फ मर्द बल्कि खवातीन अहलकारों ने भी की खूब जोर आजमाई। पुलिस लाइन फैसलाबाद में सालाना इंटर पुलिस डिपार्टमेंट रस्साकशी चैंपियनशिप का इनेकाद किया गया। पुलिस लाइन फैसलाबाद में नौजवान एहलकारों का रस्साकशी का मुकाबला हुआ। मुकाबले में न सिर्फ मर्द बल्कि खवातीन एहलकारों ने भी खूब जोर आजमाई की। रस्साकशी के मुकाबलों में मर्दों में रेंज लाहौर ने टाइटल अपने नाम किया, जबकि खवातीन में फैसलाबाद रेंज की कुड़ियां सबसे आगे रहीं और जीत अपने नाम की। डीएसपी पुलिस लाइन का कहना था कि पुलिस डिपार्टमेंट में खेलों के मुकाबले ज्यादा से ज्यादा होने चाहिए ताकि एहलकारों की जहनी व जिस्मानी नशोनुमा बेहतर रहे। मैच पुलिस लाइन फैसलाबाद में मनक़द हो रहा है और इसमें जो 6 टीमें हिस्सा ले रही हैं, इसमें मोटर पुलिस, एसपीयू और ट्रैफिक पुलिस, एसपीयू और दीगर अदारे हैं हिस्सा ले रहे हैं, और जिनमें पहली, दूसरी और तीसरी पोजीशन लेने वालों में ट्रॉफियाँ भी तकसीम की जाएंगी। सालाना इंटर पुलिस डिपार्टमेंट रस्साकशी के मुकाबले में जीतने वाली टीमों में नकद इनामात भी तकसीम किए गए। कैमरामैन तसव्वुर अब्बास के साथ अली रजा, सिटी 41 फैसलाबाद। जंग के वकला कानूनी मैदान समेत क्रिकेट के मैदान में भी सफ़े अव्वल। डिस्ट्रिक्ट बार जंग की टीम ने साहिवाल में होने वाले ऑल पाकिस्तान वकला क्रिकेट एसोसिएशन कप जीतकर टाइटल अपने नाम लिया। डेप्यूटी कमिश्नर अब्दुल्ला खुरम न्यासी ने जीतने वाली टीम के अराकीन को इनामात से नवाजा। सदर बार एडवोकेट मुनीर अहमद संधाना समेत दीगर ओहदेदारान ने भी नेक तमन्नाओं का इजहार किया। तकरीब में मैन ऑफ टूर्नामेंट एडवोकेट एडी सिंधारना को फूलों के हार पहनाए गए हैं। खिलाड़ियों का कहना था कि डिस्ट्रिक्ट बार की मुस्बत रिवायात को आगे बढ़ाया जाएगा।